Good morning, class 4th. In the previous class, I had discussed with you how it is working in Word 2016, what is the work we are doing in Word, how we can create a document, how we can save a file, how we can editing a document, okay, how many we can select the word, text, and all the things which is used by us. ओके तो मैंने काफ़ी सारे शॉर्टकट्स जो है वो आपके साथ डिस्कस किए थे एंड आई होप यू विल रीड ऑल द शॉर्टकट्स एंड इट इज़ वेरी important for you just read the all shortcuts and learn the shortcuts because it is very important for your exam purpose also. Okay, so now we are going to start inserting the text. That is next topic of your chapter on the page number 51. And if you have at your home a computer or laptop, please try it on a computer or laptop also. It is very easy process and you are able to do because मैंने आपको प्रीवियस क्लास में काफ़ी सारे वर्ड्स के कुछ पैराग्राफ और वर्क करवाए थे. सो दैट इज़ easy thing and I know you are able to do this. Okay, so let's start inserting the text. So inserting the text, what is the meaning of that? इंसर्टिंग द टेक्स्ट मीन्स सपोज आपने एक लाइन लिखी है और एक वर्ड आपसे मिस हो गया एंड यू वांट टू बी इंसर्ट ऑन द पर्टिकुलर लाइन टू इंसर्ट अ वर्ड, देन व्हाट द प्रोसीजर ऑफ दैट? द फर्स्ट थिंग यू जस्ट सेलेक्ट द वर्ड एंड write the word which you want, or just with the help of mouse you click on the that particular place and just write the word which you have missed it. Okay, so that is the use of inserting the text. Okay, so let's see how this work. Inserting the text. Inserting the text, I have told to you right now. So let's see. Inserting the text in Word, the text can be added on the already existing document. तो पहले से आपके पास है उसमें आप एडिटिंग कर सकते हैं by using the insert mode और by using the overtype mode. ठीक है, insert mode में क्या होता है? That is very easy process. 3 स्टेप हैं इसके अंदर. First step will be just right click on the status bar, the custom status bar menu appear. You just click on that. Okay, when you click on that, on the insert option on the status bar, ठीक है, there is option of overwrite which indicates the insert mode is selected. ठीक है, when you click on that, now the pointer on the particular place where you want to be insert a text, just type your text and the change will be available for you. Okay, now the overtype mode, the existing text can be replaced by the typing a new text on it. इसके लिए आप क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को सेलेक्ट करके सपोज आपने एक वर्ड को बाय मिस्टेक गलत लिख दिया एंड यू वांट टू बी चेंज, तो आप उस पूरे वर्ड को सेलेक्ट करके एक जो भी अपना नया वर्ड है वो व्हेन यू राइट ऑन दिस द प्रीवियस वर्ड विल बी रिप्लेस्ड बाय द न्यू वर्ड्स. हाउ? लेट्स सी. सेम ऑपरेशन वी आर परफॉर्म. जस्ट क्लिक ऑन द इंसर्ट ऑप्शन प्रेजेंट ऑन द स्टेटस बार. जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, दिस विल बी चेंज द करंट मोड एंड प्लेस द कर्सर बिफोर द टेक्स्ट यू बिगन टू टाइप. सपोज मुझे यहाँ पे टाइप करना है तो मैंने आपको बताया, उसको सेलेक्ट करेंगे एंड देन वी विल राइट द आर टेक्स्ट एंड द प्रीवियस टेक्स्ट विल बी रिप्लेस्ड बाय द न्यू वन. ओके, सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग द वर्ड्स, सॉरी, इंसर्टिंग द टेक्स्ट. नेक्स्ट टॉपिक इज कॉपी टेक्स्ट. कॉपी टेक्स्ट मीन्स सपोज आपको एक या दो या तीन लाइन या सपोज पूरा का पूरा पैराग्राफ कॉपी करके दूसरी जगह पे पेस्ट करना है या उसी डॉक्यूमेंट में कहीं और पेस्ट करना है, देन वी विल यूज द कॉपी ऑप्शन. कॉपी ऑप्शन मीन्स यू विल कॉपी दीज वर्ड ऑफ सेलेक्टेड लाइन, टेक्स्ट और पैराग्राफ. ओके, जैसे एक
एक लाइन या एक टेक्स्ट या एक पूरे पैराग्राफ को या पूरे होल डॉक्यूमेंट को आप लोग सेलेक्ट करके उसको कॉपी कर सकते हैं और किसी दूसरी जगह या दूसरी फाइल के अंदर आप उसको पेस्ट करके यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो मेक अ डुप्लीकेट thing of a particular file. Okay, copy text means making the duplicate copy of the text. This is done using the copy and paste command. आप लोगों ने यूज़ किया होगा थर्ड क्लास के अंदर. हम लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर लाइन टेक्स्ट को सेलेक्ट करके उसको कॉपी करते हैं एंड वी आर पेस्ट ऑन द अदर पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट और अदर पार्ट ऑफ द पेज. ओके, that is the procedure. First copy and then click on the right click on the mouse button and there is option of paste. Okay, दो ऑप्शन होंगे आपके पास, टेक्स्ट या इमेज. तो अगर मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया है then I will use the text, और मैंने अगर इमेज सेलेक्ट किया then I will use the image. ठीक है, so that is the use of copying image. Okay, next is moving text. Moving text means the text moves from the text from its original location to the new location. The process is similar to copy a block of text. इसमें मूविंग में क्या करते हैं, इसको कॉपी में क्या करते थे हम लोग, उसको एक डुप्लीकेसी क्रिएट कर देते हैं. मूविंग के अंदर हम लोग क्या करेंगे, उसको एक लोकेशन से हटा के रिमूव करके नए लोकेशन के अंदर उसको पेस्ट करेंगे. दैट इज प्रोसेस इज नोन एज मूविंग टेक्स्ट. देखिए, कॉपी और मूविंग बहुत है सेम है, बट थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि उसके अंदर कॉपी के अंदर हम उसकी डुप्लीकेसी क्रिएट करते हैं. तो पहले जिसकी डुप्लीकेट कर रहे हैं वो वहाँ पे एज इट इज़ रहता है. मूविंग के अंदर क्या होता है, वो वहाँ से पूरी तरीके से हट जाता है और नए लोकेशन पे जाके पेस्ट होता है. ओके, so that is the basic difference between the copying and moving. तो ये आपको पता होना चाहिए. Similar to copy block of text, we cut the button and then copy it and then paste it. First select the block of text you want to be moved. यहाँ से select किया, यहाँ पे आपने cut के बटन पे क्लिक किया of the clipboard. ठीक है, जो कि होम टैब पे है, और जहाँ पे आपको पेस्ट करना है वहाँ पे आपने कर्सर पेस्ट किया एंड देन ये देखिए मुझे डिग्री सेंटीग्रेड के बाद चाहिए. एंड नाउ थर्ड स्टेप इज जस्ट क्लिक ऑन द पेस्ट एंड द कट टेक्स्ट विल बी पेस्ट ऑन दैट लोकेशन. यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया और ये यहाँ से आ गया. तो पहले कहाँ पे था, ऊपर था, और अब यहाँ से ये यहाँ पे आ गया. ओके, तो दैट इज अ प्रोसीजर ऑफ मूविंग टेक्स्ट. कॉपी के अंदर एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे उसकी डुप्लीकेसी क्रिएट होती है. मूविंग के अंदर ऐसा नहीं होता. मूविंग के अंदर एक प्लेस से हट जाएगा, वो डिलीट हो जाएगा और दूसरी जगह पे जाके पेस्ट होगा. ओके, सो दैट इज अ यूज ऑफ पेस्ट टेक्स्ट. नाउ थर्ड इज डिलीटिंग टेक्स्ट. डिलीटिंग मीन्स जितना भी टेक्स्ट आपने लिखा आप उसको डिलीट कर सकते हैं. टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं, लाइन को डिलीट कर सकते हैं, और पूरे पैराग्राफ या एंटायर डॉक्यूमेंट को भी डिलीट कर सकते हैं. ठीक है, तो एंटायर डॉक्यूमेंट को डिलीट करना, उसके लिए एक शॉर्टकट भी होता है, आपकी बुक में दे नहीं रखा, बट आई विल डिस्कस विथ यू. ओके, सो व्हाट इज द डिलीटिंग टेक्स्ट? द backspace and delete key are the present on the keyboard are used to delete the line, text or paragraph. ठीक है, so the backspace key will delete the text from the left of the cursor. अब देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे डिलीट के ऑप्शन दे रखे हैं. एक तो हम लोग बैक स्पेस से डिलीट करते हैं, तो बैक स्पेस से जो डिलीट कर रहे हैं, ठीक है, वो डिलीट होता है लेफ्ट ऑफ द कर्सर. अगर मैं डिलीट से डिलीट कर रहा हूँ दैन इट विल बी इरेज फ्रॉम द राइट ऑफ द कर्सर. दोनों में बहुत डिफरेंस है. अगर टेक्स्ट को, सपोज ये मेरा टेक्स्ट है, मैंने यहाँ पे लिखा द. ओके, अब मैं इसको बैक स्पेस यूज़ कर रहा हूँ तो ये यहाँ से डिलीट होगा. सपोज मैंने यहाँ पे बैक स्पेस यूज़ किया तो सबसे पहले ई जाएगा, एच जाएगा, फिर टी डिलीट हो जाएगा. लेकिन सपोज मैं अगर डिलीट की यूज़ कर रहा हूँ तो डिलीट की मैं यहाँ पे रखूँगा
सपोज मुझे इस द वर्ड को डिलीट करना है, तो ये द जो है वो कैसे डिलीट होगा, पहले टी फिर एच फिर ई रिमूव होगा. दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस ऑफ रिमूविंग विद द हेल्प ऑफ डिलीट एंड बैक स्पेस. अगर आपके पास सिस्टम है, कंप्यूटर, लैपटॉप, कुछ भी है, तो एक बार आप ट्राई करें इसको. यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड बैक स्पेस की. ओके, and we are able to also delete the text, paragraph and all the document with the delete key. एक delete key भी होता है कीबोर्ड के अंदर, ठीक है. so I think that is a use of delete the particular text. अब एक यहाँ पे हुआ undo redo change, ठीक है. undo means क्या होता है, जो भी आपने चेंजेस किए हैं वापस से उसको हटा के नया जो भी आपने चेंज किया उसको प्रीवियस वाला रखना है. देन वी विल यूज़ द अंडो की, ठीक है. रीडो की क्या होता है, सपोज आपने जो भी नया चेंजेस किया है वो उसको वापस लेकर आना, आप बाय मिस्टेक आपने उसको हटा दिया और वापस लेकर आना, देन वी विल यूज़ द रीडो की. सो दैट इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द अंडो एंड रीडो की, ठीक है. एंड द रेस्ट ऑफ थिंग वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास. आई थिंक दैट इज़ जो भी इसके स्टेप्स हैं, कैसे वर्क करता है, ठीक है, we will do in the next class. I hope you will understand my today's lecture. That is, chapter is very big, so I just request you please read the chapter at least one time in a day, so you are able to understand this chapter very easily. And if you have a computer system at your home, then try each and everything on the word. इसके लिए ज़रूरी नहीं है 2016 एडिशन ही हो, किसी पे भी कर सकते हैं, 10 है या 8 है, ठीक है. So if you have any query regarding this chapter, you just message me on your online portal. I will reply to you. Okay, so thank you so much. We will do the next part of this chapter in the next class.